if x equal to cos theta plus I sin theta, this is equal to e to the power I theta. X raised to n, this is equal to e to the power I theta whole power n. E raised to I n theta, that is cos n theta plus I sin n theta. X to the power minus n, that means e to the power I theta whole power minus e to the power minus n theta. This is equal to cos n theta minus I sin n theta. This implies x raised to n plus x raised to minus n. This is equal to cos n theta plus I sin n theta plus cos n theta minus I sin n theta. X raised to n plus 1 upon x raised to n cos n theta, that is 2 cos n theta. क्लियर हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन. ठीक है, माइनस करना है तो माइनस वाली भी निकाल सकते हैं. सिमिलरली x रेज टू n minus 1 upon x raised to n, this is equal to I 2I sin n theta. Question number 30. If x plus 1 upon x, this is equal to 2 cos pi by 5. 2 cos pi by 5. n की वैल्यू 1 पुट कीजिए यहाँ पे. x plus 1 upon x is equal to 2 cos theta. x plus 1 upon x is equal to 2 cos theta. That means x equal to e to the power I theta. Implies that x is equal to e to the power I pi by 5. सेम है सारी, सिमिलर है क्वेश्चन. x इक्वल टू e टू द पावर I pi by 5. कैलकुलेट करना है आपको. क्वेश्चन नंबर 30 में x रेज टू 5, x रेज टू 5, दिस इज इक्वल टू I pi by 5 whole power 5 e to the power I pi. Implies that x raised to 5 plus 1 upon x raised to 5, this is equal to 2 cos angle pi. Cos pi की वैल्यू -1, this is equal to -2. Question number 89. X plus 1 upon x, this is equal to 2 cos theta implies that x is equal to e to the power I theta. Implies that x raised to n is equal to e to the power I n theta. Implies that x raised to n plus 1 upon x raised to n is equal to 2 cos n theta. सिमिलर यही क्वेश्चन है. ऑप्शन नंबर ए. x plus 1 upon x, this is equal to 2 cos theta. Implies that x is equal to e to the power I theta. Y plus 1 upon y, this is equal to 2 cos phi.
implies that y is equal to e to the power I5 x raised to m y raised to n. X raised to m e to the power I theta whole power m e to the power I m theta. Y raised to n e to the power I5 whole raised to n e raised to I n phi. X raised to m over y raised to n. X raised to m over y raised to n. This is equal to e to the power I m theta divided by e to the power I n phi, implies that e raised to I m theta minus n phi. अगर ये x है e raised to I m theta minus n phi, तो x प्लस वन वाई एक्स यही फाइंड करना था आपको. x रेस टू m अपॉन y रेस टू n प्लस y रेस टू n अपॉन x रेस टू n. इसी को फाइंड करना है. यस, x प्लस वन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा 2 cos थीटा. 2 cos थीटा की वैल्यू m थीटा माइनस क्यों 2 रेस टू n कॉमन लिया था. क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 106 एंड क्वेश्चन नंबर 111 ये आपके होंगे इसी पैटर्न पर. क्वेश्चन नंबर 109, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0. रिराइट कीजिए इस क्वेश्चन को. नेगेटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0. वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर. वाई मीन्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर. एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर. वैल्यू किसकी चाहिए आपको 109 में. अल्फा रेस टू 1030 अल्फा बीटा. अल्फा रेस टू 1030 प्लस बीटा रेस टू 1030 माइनस ओमेगा रेस टू 1030 प्लस माइनस ओमेगा रेस स्क्वायर रेस टू 1030. इवन पावर है प्लस ही रहेगा. ओमेगा रेस टू 1030 ओमेगा रेस टू 2060. ओमेगा क्यूब 1 होता है 3 से डिवाइड करेंगे. 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 ओमेगा क्यूब. 3 6 जा 3 8 जा 3 6 जा इंटू ओमेगा स्क्वायर. 1 इंटू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू -1. ओमेगा की वैल्यू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर -1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2. ठीक है, किसी को भी ओमेगा बोल सकते हैं, किसी को भी ओमेगा स्क्वायर. मैं एक कर लेता हूं. ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3i अपॉन 2. ठीक है, ओमेगा की वैल्यू -1/2 प्लस √3/2 i. नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है. क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड. अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स √3 कितना होता है π/3. आर की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ ऐड करेंगे तो 1/4 प्लस 3/4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1.
दैट मीन्स ओमेगा इक्वल टू 1 e की पावर थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस एल्फा इंटू वाई e टू दी पावर 2 पाई बाई 3 टाइम्स आई। कोई कंफ्यूजन? ओमेगा की वैल्यू e रेस टू थीटा नहीं लिखा था मैंने, इसलिए दोबारा से लिख लिया। तो पाई यहाँ लगा दिया फॉर्मूला, अदरवाइज थीटा यहाँ लिखा लेते तो डायरेक्ट दे देता 2 पाई बाई 3। वहां निकाल नहीं निकाला थीटा मैंने, यहाँ निकाल दिया। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा होता है तो 2 पाई बाई 3 आ गया। ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई भी कुछ भी हो सकता है। अब लेकिन इस क्वेश्चन में अगर ये ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन ओमेगा। याद है ना, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। 1 अपॉन e टू दी पावर 2 पाई बाई 3 आई e रेस टू माइनस 2 पाई बाई 3 आई e रेस टू 2 पाई ऐड कर सकते हैं, 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 3, 3 2 जा 6। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर e टू दी पावर प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 टाइम्स आई, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू e टू दी पावर 2 पाई बाई 3 आई और दूसरा e टू दी पावर 4 पाई बाई 3 आई। क्वेश्चन नंबर 100 है 1 प्लस आई रूट 3 होल पावर 10 प्लस 1 माइनस आई रूट 3 होल पावर 10। दोनों सेम टर्म है, बस इसका कॉन्जुगेट लिखा है, आई को माइनस आई से रिप्लेस कीजिए, ये आ जाएगा। वर्क हमें सिर्फ एक के लिए करना है, 1 और रूट 3 का पेयर दिख गया, दैट मीन्स ओमेगा हो सकता है। ओमेगा की वैल्यू सेम साइन है तो -1 माइनस रूट 3 आई अपॉन 2। प्लस वाले को नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पे हमें प्लस चाहिए था ना, इसलिए यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो सेम साइन मिल जाएगा प्लस का, तो इसलिए मैंने -1 प्लस रूट 3 आई वाले को ओमेगा नहीं बोला, इस बार नेगेटिव वाले को ओमेगा बोला है। दैट मीन्स 2 ओमेगा की वैल्यू माइनस कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस रूट 3 आई, तो 1 प्लस रूट 3 आई की वैल्यू -2 ओमेगा, तो इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे तो 1 माइनस रूट 3 आई -2 ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर, यहाँ वैल्यू रख दीजिए। दैट मीन्स 1 प्लस आई रूट 3 होल पावर 10 1 माइनस आई रूट 3 होल पावर 10, दिस इज इक्वल टू -2 ओमेगा रेज टू 10 -2 ओमेगा स्क्वायर रेज टू 10, 2 रेज टू 10 ओमेगा 10 प्लस ओमेगा 20, 2 रेज टू 10, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 1024 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, -1 होता है तो माइनस का 102, 2 प्लस 2 रूट 3 आई 4 रेज टू 100। ओमेगा इज इक्वल टू सेम साइन है, -1 माइनस रूट 3 आई अपॉन 2, 2 ओमेगा 1 प्लस रूट 3 आई, that is z is equal to 2 1 plus root 3i whole power 100। 1 plus root 3i की वैल्यू -2 ओमेगा -4 ओमेगा रेज टू 100, 4 रेज टू 100 ओमेगा रेज टू 100, दिस इज इक्वल टू 4 रेज टू 100 ओमेगा क्यूब होल रेज टू 33 इंटू ओमेगा, ओमेगा रेज टू 100 इंटू ओमेगा, ओमेगा रेज टू 100 ओमेगा। सेम क्वेश्चन के लिए ओमेगा की वैल्यू -1 माइनस रूट 3 आई अपॉन 2। आपको चाहिए रियल पार्ट ऑफ जेड ओवर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ध्यान से देखिए, ये मल्टीप्लाई फैक्टर है ना, 4 रेज टू 100 अपॉन 2, ये ए में भी है बी में भी है,
तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो दोनों में कैंसिल होगा, तो रियल और इमेजनरी यहीं से मिल जाएगा। रियल पार्ट है -1, इमेजनरी पार्ट है -√3, दैट इज 1/√3। क्वेश्चन नंबर 147, z² + z + 1 this implies z is equal to ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन पर चलिए, n is not a multiple of 3, then n is equal to 3 की फॉर्मेट में 3k हो सकता है, 3k + 1 हो सकता है, 3k + 2 हो सकता है ना। 3k + 3 तो यही फॉर्म हो गई। 3 से डिवाइड करने हैं तो 3 नंबर आते हैं, 4 से हो तो 4k, 4k + 1, 4k + 2, 4k + 3, 4 पार्ट में आती है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स ये नहीं होना चाहिए, या तो ये हो या ये हो। ठीक है ना। अब 3k + 1 हो, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स सबसे सिंपल तरीका तो ये हो गया, n = what, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। ठीक है, और आपको वैल्यू किसकी चाहिए, Zn + z⁴ है। दिस इज इक्वल टू z + z², z + z² की वैल्यू -1 से सिंपल। क्वेश्चन नंबर 138, cos θ1 + I sin θ1, cos θ1 + I sin θ1 डिवाइड बाई cos θ2 + I sin θ2, cos θ + I sin θ, e⁻I θ1 over e⁻I θ2 implies that e⁻I θ1 - θ2, that is equal to cos θ1 - θ2 plus I sin θ1 - θ2। सिंपल था। is equal to a, b means a plus ib, cos θ plus I sin θ। a, b में देना था मैंने, a plus ib लिख दिया। तो z is equal to e⁻I θ implies that z plus 1/z, this is equal to 2 cos θ। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है z - 1/z, 2i sin θ। याद है फॉर्मूला जैसे ही 160, z equal to √3/2 plus 1/2i whole raised to 5 plus √3/2 minus 1/2i raised to 5। √3 और 1 का पेयर दिखा, इस ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस √3i अपॉन 2। किससे फायदा रहेगा ये देख लीजिए, √3i माइनस वाले से, -1 को i² लिखेंगे, प्लस वाले से फायदा रहेगा, क्योंकि √3i नहीं है, इसके साथ i कॉमन लेना है, इसलिए देखना पड़ेगा किसके साथ फायदा है। 2 मिनट में देखने के। देखिए फिर से देखिए, ओमेगा की वैल्यू ये रही, प्लस या माइनस दिखना है तो i गायब है, √3 के साथ i होता है, दैट मीन्स माइनस को i² ले सकते हैं, तो i² लिखेंगे, i कॉमन लेंगे, सेम साइन मिल जाएगा। तो 2 ओमेगा की वैल्यू 2 लिखा देने दीजिए या फिर यहीं पे, ओमेगा इज इक्वल टू i² प्लस √3i अपॉन 2, √3 प्लस i अपॉन 2 टाइम्स i, √3 प्लस i अपॉन 2, ठीक है ना। ये ओमेगा, दैट मीन्स ओमेगा अपॉन i की वैल्यू √3 प्लस i अपॉन 2। ये इसका कॉन्जुगेट लिखा हुआ, i की जगह माइनस i है तो इसका कॉन्जुगेट लिख लेंगे, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू, ये जो पार्ट है इसकी वैल्यू आई ओमेगा अपॉन i
होल रेज टू 5 प्लस कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर आई का कॉन्जुगेट माइनस आई होल रेज टू 5 ओमेगा 5 ओवर आई 5 माइनस ओमेगा 10 ओवर आई 5 ओमेगा स्क्वायर अपॉन आई माइनस ओमेगा अपॉन आई आई से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आई ऊपर ही पहुंचेगा दैट इज 1 अपॉन आई ऐसा लिख लीजिए ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 अपॉन आई ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √3 आई अपॉन 2 ओमेगा स्क्वायर कॉन्जुगेट है इसका माइनस ओमेगा करेंगे -1 प्लस √3 आई अपॉन 2 देख लीजिए क्या आ रहा है 1 अपॉन आई नेगेटिव में सेम साइन कैंसिल होते √3 माइनस √3 अपॉन 2 तो माइनस का √3 आई हाफ ईयर √3 आई हाफ ईयर माइनस का √3 आई आई गेट्स कैंसिल दैट इज माइनस का √3 प्लस 0 आई ये आंसर है आपका और आपसे पूछ रहा है इसमें रियल पार्ट 0 नहीं रियल पार्ट 0 नहीं है रियल पार्ट तो -√3 है इमेजिनरी पार्ट गेट इक्वल टू 0 ऑप्शन नंबर बी इमेजिनरी पार्ट 0 है साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा होल पावर 4 डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होल क्यूब ये तो ठीक लिखा है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा आई गड़बड़ है आई बाहर लेना है इसको लिख सकते हैं आई कॉमन लेंगे आई तो यह जाएगा कॉस थीटा जाएगा 1 अपॉन आई इस माइनस आई साइन थीटा बताइए क्या आई कॉमन ले पाए नहीं ले पाएंगे तो आई का मल्टीप्लाई करिए देखिए दिख जाएगा आपको पावर साथ में आई ठीक है ना 4 तो एक से आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई कॉस थीटा और ये आ जाएगा माइनस आई स्क्वायर -1 होता है तो प्लस का साइन थीटा दोनों सेम है I4 1 होता है आंसर आया कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं x इक्वल टू a प्लस बी x इक्वल टू a प्लस बी y इक्वल टू a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर z इज इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितनी भी मेहनत कीजिए आंसर तो उन चार में से एक आना है ठीक है आंसर तो उन चार में से एक आना है चारों ऑप्शन देख लीजिए डिफरेंट है अगर बी 0 होता एक्स दिखता ए वाई दिखता ए ओमेगा जेड दिखता आपको ए ओमेगा स्क्वायर रखिए आंसर आ गया आपके पास ए क्यूब ए ओमेगा होल क्यूब ए ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब ए क्यूब कॉमन 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 6 3 के मल्टीपल है 1 होता 3 का मल्टीपल तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 ए क्यूब ऑप्शन नंबर ए क्यूब वाला एक ही है ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 32 95 148 and 177 ठीक है अभी मेरे पास 177 है क्वेश्चन नंबर 177 द सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी
nth रूट ऑफ यूनिटी। स्क्वायर रूट होते हैं 1 और -1, क्यूब रूट होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, फोर्थ रूट होते हैं 1 -1 आई और -i। इतना तो मालूम ही है। इनका सम पूछ रहा है, अगर सम देखें तो ये भी 0 है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसमें सम देखें अगेन 0, इसमें सम देखें तो अगेन 0। सो सम ऑफ एन, जनरल वैल्यू एन यूनिटी का देखेंगे, nth रूट का सम भी रिटर्न ट्रायल से खत्म हो गया। तो ना हम n रूट निकालेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। ठीक है ना। 148, अगर इसे ध्यान से देखें तो एक है -1, दूसरा है -1 का स्क्वायर, एक है ओमेगा, दूसरा है ओमेगा स्क्वायर और तीसरा है ओमेगा क्यूब। एक है आई, दूसरा है आई स्क्वायर, फिर है आई क्यूब और फिर है आई फोर की वैल्यू 1, आई क्यूब माइनस आई स्क्वायर -1 और आई तो सेम आई है। आ गया। ये क्या है? जीपी। ये क्या है? जीपी गुरुत्व श्रेणी। ये क्या है? जीपी। तो जनरली एन वाले से भी क्या बनेगी? जीपी। क्वेश्चन नंबर 148 हो गया। ये नंबर चेंज कर दो। क्वेश्चन नंबर 95 पढ़ लीजिए। नाइनटी माइनस में 1 से माइनस करके इनका प्रोडक्ट लेना है, 1 से माइनस करके इनका प्रोडक्ट करना है। लेकिन ध्यान से देखिए, पहले वाले को 1 - 1 को छोड़ दिया था, बाकी का मल्टीप्लाई करना है। इसमें इसे छोड़ना है, इसमें इसे छोड़ना है, इसमें इसे छोड़ना है और 1 से माइनस करना है। तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 यानी कि 2 आ जाएगा। ये 1 माइनस ओमेगा और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 से करेंगे तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और प्लस ओमेगा क्यूब। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आया। इसमें करेंगे 1 माइनस माइनस प्लस 1, 1 माइनस आई और 1 प्लस आई। 1 प्लस 1 2 और ये जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर, 1 प्लस 1 दैट इज 4। स्क्वायर रूट में 2, क्यूब रूट में 3, फोर्थ रूट में 4, तो nth रूट में क्या जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12y। स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12y। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 3 प्लस 2y, 3 प्लस 2y, 2 प्लस 3i, 2 माइनस 3i, 3 माइनस 2y। Square root of 4, this is equal to 2, implies that 2 square is equal to 4. Square root of 5 plus 12y is equal to this one, implies that square of these, this is equal to 5 plus 12y. कोई कंफ्यूजन किसी को? जो भी सही होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो 5 प्लस 12y मिलना चाहिए था। कोई कंफ्यूजन किसी को? चेक कर लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा, प्लस का 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं माइनस का 2ab आता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो दो तो देके ही काट देना है आपको। क्लियर हो गया? करना नहीं है, जैसे ही देखा यहाँ पे प्लस था तो प्लस का 2ab था या प्लस साइन था। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं a और b को क्रॉस कर देता, 100% श्योर होता सी और डी में से एक सही है। किसी एक को कर लीजिए, बस एक और कैंसिल करना है। 2 प्लस टी आई का स्क्वायर कर लेते हैं या 3 प्लस 2 आई का 3, इसका करें सी स्क्वायर प्लस 4i स्क्वायर प्लस 12y। 9 माइनस 4 प्लस 12y, 5 प्लस 12y।
कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 55 मोस्ट इंपोर्टेंट। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा होल रेज टू 3n माइनस 1 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू 3n। ठीक है, वैल्यू पूछ रहा है पहले प्रॉपर मेथड से। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मीन्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, जो नहीं होता वही आया था तीसरा वाला। ओमेगा रेज टू 3n माइनस ओमेगा रेज टू 3 2 जा 6n ओमेगा क्यूब रेज टू n ओमेगा क्यूब रेज टू 2n दैट इज 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सही है ना? अब मेरा मेथड देखिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा रेज टू 3n माइनस 1 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर रेज टू 3n। ठीक है ना? क्वेश्चन में n था, आंसर में n होना चाहिए था। ऑप्शन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 55 के ऑप्शन देख लीजिए, 0 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 0 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। n कहीं है ही नहीं, दैट मीन्स n 1 का वहम है। n इक्वल टू 0, किसी की पावर 0 वैल्यू 1, a इक्वल टू cos 4 पाई बाई 3 प्लस i साइन 4 पाई बाई 3, that is a equal to e to the power I 4 पाई बाई 3। सर हमने तो पहचान लिया, इसे आप ओमेगा लिख रहे हो, याद आया? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू e टू दी पावर प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 और e टू दी पावर 2 पाई बाई 3 i e टू दी पावर 4 पाई बाई 3 i। अच्छा ना, मैं क्यों बोलूंगा ये ओमेगा स्क्वायर है? तो अपना फायदा देख रहा हूँ, मुझे ओमेगा क्या फायदा रहता है। तो यह आ जाएगा 1 प्लस ए अपॉन 2 होल रेज टू 3n, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा अपॉन 2 रेज टू 3n माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 रेज टू 3n, दैट इज माइनस 1 रेज टू 3n ओमेगा रेज टू 6n अपॉन 2 रेज टू 3n। माइनस 1 रेज टू 3n, 3n का मीनिंग n 3 टाइम्स है, तो माइनस 1 रेज टू 2n कर लीजिए, वो तो इवन हो गया, तो 1 हो जाएगा। तो माइनस 1 रेज टू n और ओमेगा 6 1, ओमेगा क्यूब की पावर 12 लिख लीजिए उसे, इतना तो डायरेक्ट कर सकते हैं, और 2 रेज टू 3n, दैट इज माइनस 1 रेज टू n ओवर 2 रेज टू 3n। ऑप्शन नंबर सी।